ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बच्चों के पास वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, बट टाइम नहीं है एक तो, या और फिर वो टीवी और फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। more is the child able to give more attention on that particular time? उसका अगर attention span is of 5 minutes and I'm making the child sit for 15 minutes, how can you expect the child to sit for 15 minutes? मैम हमें बताइए, इज़ इट ओके टू गिव इन टू चाइल्ड्स डिमांड्स? तभी कर पाएंगे जब आप उसे गिरने का मौका देंगे। हम हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे कि हाँ, गिरने से पहले हम उसे उठा लेंगे। तो वो बच्चा क्या सीखेगा? माई पेरेंट इज़ ऑलवेज टॉकिंग गुड अबाउट द अदर बट आई चाइल्ड। थिंक फिर ये सिबलिंग राइवलरी के मेन रूट कॉज कभी कभी पेरेंट्स ही पेरेंट्स हो ही हो जाते जाते हैं। हैं। ऐसा ही होता है ना आई ऑफिसेज थिंक में यार भी। ये पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए समझना वे टू चाहिए। ड्रॉ लाइन, यस। कि या ज़्यादा ब्राइब नहीं करना चाहिए, रिवॉर्ड्स ज़्यादा या देने। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड एंड पेरेंट साइकोलॉजी हैज़ बीन commendable. She has aspired and relentlessly worked towards contributing to the lives of parents and children in a very positive manner. A renowned educationist, parent coach, a certified child psychologist, practitioner of ABA, Applied Behavior Analysis, principal of Kidsy Preschool and Mount Litera Z School, Powai. Let's welcome Mrs. Aruna Agarwal. Hello, Aruna ji. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। So, बताइए, how are you doing today? I'm feeling great. It's a great opportunity to be at your show. Thank you. Thank you so Thanks much. for gracing it. Yeah. अच्छा, हमें बताइए कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनने का आपने कब सोचा? See, मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, it was child psychology, but I never, before my marriage, when I wanted to be, I wanted to be in another field altogether. But जब मेरे खुद के बच्चे हुए, I have 2 sons, so that's the time actually I really wanted to pursue it further, और उसके लिए मैंने आगे और पढ़ना शुरू किया, because that's the time I wanted to do something for children, and it was fun being with children, working along with them, understanding about them. So अच्छा मज़ा आने लगा उस टाइम पे बच्चों के साथ में। जब आपके खुद के बच्चे होते हैं जी। तो आप बहुत कुछ समझना चाहते हैं। And I come across a lot of moms who come to me every day, and they have so many questions. Now you have Google to answer those questions, but then it's not so much enough. जब भी हमने शुरू किया था, जब मैंने स्कूल शुरू किया था around 20 years back, ago. So that time we didn't have Google. So it was, या तो दादी नानी उनके जो वेज थे, जो उनकी कंडीशनिंग थी, उससे सीखते थे. But I understood that was not good enough. Okay. So that's the time I decided to be in this field. So, मैम ये बताइए, how do you develop healthy emotions in children? See, before you develop healthy emotions in children, I feel every mom has to be emotionally, more mindful of her own emotions, her own self. Because हम लोग जहाँ पे mothers बन जाते हैं, we start doing everything around children. We start running around. Child becomes the center of what we are. So we forget about our own emotions. We also have emotions. We also go through a lot of turmoil in our day to day life. तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है एक मदर के लिए कि अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करे, बिकॉज जब बच्चे से आप डील कर रहे हो वो बहुत क्लोजली आपको ऑब्जर्व कर रहा है. अगर आपकी इमोशनल हेल्थ इज़ नॉट बैलेंस, यू कैनॉट डू जस्टिस टू योर चिल्ड्रन. So you are portraying your own emotions, and children are going to pick up. They are going to just look at you, and unknowingly they'll pick up a lot of emotions. Right. तो मदर की इमोशंस को बैलेंस करना पहले ज़रूरी बहुत है, आई ज़रूरी है. थिंक. Correct. सो आप बताइए, की माइलस्टोन्स कौन से होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में? So when a child is born, there are a lot of milestones which naturally, they start achieving, be it walking, crawling,
and the speech starts developing. But many a times when these milestones are not coming at right time, हाँ. if it is a delay, so that's a red flag. You have to understand, go and consult a developmental pediatrician or a psychologist who's there near to you. So even in the schools also, they start understanding what are the delays which the child is should have at a particular age. Maybe a 2-year-old should be able to at least walk and say few words. So agar ye delay ho raha hai, so this is like a red flag. A parent should be knowing about these red flag, because many a times मुझे तो लगा कि नहीं, हमारा घर में हमने सुना कि बच्चा कई बार हमारा बेटे ने लेट बोलना शुरू किया, तो ये बच्चा भी इसीलिए लेट बोल रहा है क्योंकि उसका फादर ने लेट बोलना शुरू किया या मदर ने लेट बोलना शुरू किया. सो बट देन यू हैव टू बी रियली माइंडफुल अगेन देयर. अगर आपका माइलस्टोन 2 इयर्स के अंदर नहीं ज़्यादा हो रहा है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है, तो इमिडिएटली बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर milestones, the way they are portraying, the way they are having their behaviors, how it is coming up. तो थोड़ा उस टाइम पे हमें अटेंशन देना शुरू करना चाहिए. अगर नहीं देंगे तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें बहुत आगे जाके डिफरेंट एंगल ले लेते हैं. सो वी हैव टू बी रियली माइंडफुल एट दैट पर्टिकुलर एज व्हेन वी आर डीलिंग आवर चिल्ड्रन विद आवर चिल्ड्रन एट दैट यंग एज. आपकी कहने का मतलब है कि वो माइलस्टोन्स अगर हमने डिले हो गए हैं या उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके उसकी फिजिकल Problematic, हेल्थ में प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स, टैंट्रम्स जो बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं. अगर बच्चे की लैंग्वेज राइट टाइम पे डेवलप नहीं हो रही है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा. अच्छा. अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो हो सकता है कि टैंट्रम्स डेवलप हो जाएं, बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग नाउ, हिज नीड्स आर बिकमिंग मोर देन फूड एंड ही वांट्स टू प्ले विद हिज पीयर्स, ही वांट्स टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. तो आपको अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अगर हम एक अनजान शहर में चले जाते हैं जहाँ पे हमें वो लैंग्वेज नहीं आता है, एंड वी आर being in that environment, we do not know how to communicate ourselves, how to communicate with other people. So we start getting frustrated over Yeah. we start getting lonely. तो Right. उसमें क्या होता है, जब बच्चे अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इमोशंस और उनको नहीं समझ में आता है कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, और वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं. और जो फंक्शन है उनका, जो बिहेवियर टैंट्रम्स का, वो यहाँ तो अटेंशन होता है. यहाँ कई केसेस में बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, एक्सेस चाहिए किसी चीज़ के, उसको वो चाहिए, उसके लिए वो टैंट्रम आ सकता है. या वो टैंट्रम आ सकता है कि उसको वो काम नहीं आता और आप उसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो वहाँ पे टैंट्रम आ सकते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई है तो ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ सकती हैं फ्यूचर में. तो लैंग्वेज डेवलप होना राइट एज पे बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा. सो मैम, हमें बताइए, हाउ डज इमोशनल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप एज द चिल्ड्रन ग्रो? See, everything has to develop at the right time. आजकल कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग, दे डू नॉट हैव इनफ सपोर्ट सिस्टम एट होम, सो द चाइल्ड इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम विद द केयर टेकर्स, और ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ एट होम, जहाँ पे वो बच्चा स्क्रीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है. जब आप स्क्रीन ज़्यादा देंगे बच्चों को तो वो बच्चा का वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बच्चा तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. ऑडियो विजुअल्स आर वेरी ब्यूटिफुल फॉर द चाइल्ड टू वॉच, एंड वो देख रहा है कि हाँ बहुत फास्ट स्क्रीन जा रहा है, लेकिन उसको उतना समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. तो यहाँ पे उसका लैंग्वेज डिले हो सकता है, उसका अटेंशन डेफिसिट हो सकता है, और कॉग्निशन में ये सब चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसकी वजह से. सो स्क्रीन टाइम, इसीलिए आजकल जो बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम शुड बी मिनिमल, स्पेशली एट दैट यंग एज, अदरवाइज अगेन इट कैन हार्म द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड. Okay. Ma'am, tell me, how does role play and activities like play, music, art help in developing a child? So
प्ले कैसा इम्पॉर्टेंट, you know, it's a very important thing which plays a very big role in the child development. हम जब बचपन में खेलते थे बाहर जाके, हमें कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती थी, हम लोग खुद सीखते थे बहुत जी। सारी चीज़ें. और आज के तारीख में जब मैं बच्चों को देखती हूँ, उनको दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले, which is really sad, you know, कि it's really sad when I look at children, oh my god, the play is not developed, they do not know how to play with toys. एंड उनको ये सारी चीज़ें फिर जब हम सेशंस में सिखाते हैं या स्कूल में जब आते हैं तो वो सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली हैं बच्चे को हम बम्बार्ड कर सकते हैं बहुत सारे टॉयज़ और स्टिमुलस उसके आसपास रख के, बट जब तक उसको ये नहीं पता है कि ये टॉय से मेरे को खेलना कैसे है, तो वो डेवलप नहीं होगा. एक एक टॉय के साथ में उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. उसमें वो फेल हो सकता है, उसमें हम लोग उसके साथ कोलैबोरेट करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम आसपास रखते हैं तो वो थोड़ी देर एक के साथ करेगा. कई पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा टॉयज़ को खेलता नहीं है, फेंकता है, बट उसको पता ही नहीं है उसके साथ खेलना कैसे है. आप कोलैबोरेट करिए, आप उसके साथ में मिंगल करिए, पेयर करिए, और उसके साथ में जब आप खेलेंगे तो वो बच्चा अपने आप सीखेगा. But he does not need so many toys. He may play with one toy. Make him, you know, give him one toy at a time. और उसके साथ में उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, और फिर जब वो खेल के उसको समझ आ जाए, give him another toy. Rather than just giving him multiple toys and he does not know how to deal with it. करेक्ट. Yeah. ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बच्चों के पास वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, बट टाइम नहीं है एक तो, या और- फिर वो टीवी और फ़ोन में बिजी हो जाते हैं. और भी वो एक फिर issue. एक इतने सारी चीज़ें उनको खेलना नहीं आता है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड विद द टॉयज़ बिकॉज दे आर नॉट नोइंग हाउ टू प्ले विद इट. राइट. तो अगर वो बोर हो जाएंगे तो थोड़ी देर में वो थक के वो छोड़ देंगे, और फिर वो वापस स्क्रीन के पास चले जाते हैं. जी. तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके साथ में खेलें, Time पहले टाइम स्पेंड करें. रोल प्ले जो आपने बोला, सबसे पहले रोल प्ले इज़ नथिंग बट आई टीच माई चाइल्ड, and by doing a modeling, by teach my child how I can be a role model, और मैं उसके साथ खेल के दिखाऊँ, उसके बाद वो फॉलो करेगा. जी. और आर्ट और म्यूज़िक का क्या रोल है बच्चों के डेवलपमेंट में? Art again is a very special thing, you know. I really feel every child should get that opportunity of, you know, being with art or music, because उसमें बच्चा एक्सप्लोर करता है कलर्स के साथ में और म्यूज़िक के साथ में. तो बहुत सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. आपकी पिंसर ग्रिप अच्छी हो सकती है व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट पेंटिंग. हमको बच्चे को कलर का फील, और उससे जब वो करता है तो उसका एक इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर, दैट मैं उस चीज़ से पहले दिन से तो कोई MFOCN बन नहीं जाएगा. उसको आपको राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी. तो उसको जब वो फील टच करता है तो ये राइट एज होती है कि उसको एक्सप्लोर करने दीजिए व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एंड दैट्स द बेस एंड फाउंडेशन फॉर देम टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ सिटिंग. इसमें सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है. तो बहुत सारा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट. बट येस, अगेन वहाँ पे हमको मॉडल करके दिखाना चाहिए अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है. कि कभी कभी कुछ बच्चे हैं कि वो उठाना नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल और अ क्रेयॉन. सो वी कैन शो देम हाउ वी आर डूइंग, और वी कैन गिव देम यू नो सम kind of activity at that time जिससे वो करें. और let them, even if the brush strokes are not that great, but encourage करें, reinforce करें, they will develop it. आजकल बहुत ये कॉमन बिहेवियर इश्यूज हैं बच्चों में. दे आर वेरी स्टबर्न, दे डोंट लाइक टू ईट, दे डोंट वांट टू डू थिंग्स ऑन टाइम. तो पेरेंट्स को उसे एक सपोर्टिव वे में कैसे सिखाना चाहिए? हम सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही बच्चा होता है हम बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं. या तो ओवर गिविंग हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या फिर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन बन जाते हैं. ये दोनों चीज़ों में जब हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों में ये स्टबर्ननेस भी आ जाएगी बच्चे में,
और वो अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं वो करना लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर एबल टू स्ट्राइक दैट बैलेंस विद योर चाइल्ड बाय पेयरिंग अप विद द चाइल्ड। सो मैं बार बार पेयरिंग का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेयरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच अ पेरेंट शुड एक्चुअली हैव विद देयर चाइल्ड। अगर आप पेयर्ड अप, नॉर्मली मैं स्कूल में कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि स्कूल में टीचर बोलेगी तो सुन लेते हैं लेकिन हम बोलेंगे तो नहीं सुनते हैं। Right, हाँ. एंड वाई? बिकॉज टीचर इज़ नॉट डूइंग एनी मैजिक अदर देन being paired up with the children. They come and talk to your child when he's in the school. They are free enough to go and talk to the teachers about how they are feeling, about their emotions. तो वो हम सुनते हैं आजकल बहुत बार, बिकॉज हम लोग अपने रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, हम अपने टाइम को कंप्लीट करना चाहते हैं एक टाइम फ्रेम में, और उसके लिए हम अपना स्ट्रेस बच्चे पे डाल देते हैं। जी. तो डेफिनेटली यू विल सी दैट रेजिस्टेंस कमिंग फ्रॉम चाइल्ड। अगर आपका बच्चे का कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 30 मिनट्स खाना खाने में लगाता है और हमें चाहिए कि वो 10 मिनट में खाना खाए क्योंकि मुझे कुछ और काम करना है, यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू टेक 30 मिनट्स बट डू नॉट गिव अ स्क्रीन टाइम, बिकॉज वॉट वी फील कि स्क्रीन है वो बच्चे को दे दो और वो खाना खिला दो। इट शुड नॉट बी, द चाइल्ड विल फील हंग्री, ही विल ईट, बट अगर आप उसको स्क्रीन के साथ खाना खिलाना शुरू कर देते हैं कई बार, तो उसमें वो बच्चे को यही नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ। जी. He is not exploring that food, he is not enjoying that food. It's then the taste is not developing because आपने उसका जो अटेंशन है वो तो ख़त्म कर दिया जो फूड की तरफ होना चाहिए था, आपने उसको उसका अटेंशन डाइवर्ट कर दिया स्क्रीन की टाइप। इफ़ ही इज़ हंग्री ही विल ईट इट। ये जो हमें कुछ सेंसेस दिए हैं भगवान ने, 5 सेंसेस जो दिए हैं ऊपर जी. वाले, so these senses have to explore food, have to look at it, have to explore the taste of it, and then only you will be able to develop that taste. Then you don't have to run around them. आपको भूख लगती ही है, वो एक बायोलॉजिकल जो आपका साइकिल है बना हुआ है, उसमें भूख लगेगी ही लगेगी बच्चे को। लेकिन हमको अपना बट वो tantrums, या हाँ, बच्चे इतना कर देते कर हैं, देते हैं। लाइक. तो वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारा ये जो लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, so the only reason because of that we are actually stressing about it. Balanced diet is important. If the child is having a appetite of 1 chapati at a time or maybe a small bowl of rice, you can give him, because he will burn it out again, he will feel hungry after maybe 2 hours. So you can divide the whole meal into 1 hour or 2 hours rather than just giving a big bowl of food at one given time. अच्छा. तो वो बहुत अच्छा रहता है जब हम उस चीज़ को डिवाइड करें, बट उसके लिए वी नीड लिटिल मोर टाइम इन हैंड एंड लिटिल मोर पेशेंस विद देम, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर कोई बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग में, तो पेरेंट्स को उससे कैसे हेल्प करना चाहिए विदाउट मेकिंग हिम फील ही इज़ नॉट गुड इनफ? Yeah, especially after COVID, I've seen a lot of cases like these coming with learning difficulties. Learning difficulties पहले भी होती थी, but वो identify नहीं हो पाती थी early years में. If the child is not able to, get a concept or not able to sit for a longer duration, so उसका पहले तो हमें diagnosis करना चाहिए कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे उसको हेल्प चाहिए. Be ready to go to a professional and seek help rather than just अंडरस्टैंड कि ठीक है वो अपने आप हो जाएगा, हम ट्यूशन्स में डाल देते हैं, हम ये कर देते हैं. वो सपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर एक नेचुरल वे में जो स्कूल में या कॉग्निटिव जो उसका डेवलप नहीं हो पाया है नेचुरल वे में, अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये ट्यूशन्स वगैरह एक हद तक हेल्प करेगा. इट विल नॉट हेल्प द चाइल्ड what a professional can help a child. So वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो हम बाद में स्ट्रगल करते हैं जब तक बच्चा 6th-7th के बाद में जब when they are getting more into examination kind of a system. So that's the time we struggle and then we are stressed and we put on our stress to children.
जब तक हमको लगता है कि नहीं ठीक है वो नेचुरल वे में सीख रहा है, नहीं है वहाँ पे स्कूल का प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो बच्चे को राइट टाइम पे उसको हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर उसको फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, we want our child to read sentences and the child is not able to read. So what is the prerequisite a child should have at that age? Is he able to understand the sounds of the letters? Is he able to understand the basic prerequisite of blending sounds? So unless he has that, how can you expect a child to read? Or is the child having more is the child able to give more attention on that particular time? Uska agar attention span is of 5 minutes and I'm making the child sit for 15 minutes, how can you expect the child to sit for 15 minutes? The behavior tantrum is going to come after 5 minutes because उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है इतना देर बैठने का, और हम ज़बरदस्ती उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर टैंट्रम्स और सब स्टार्ट हो जाता है. सो हमारा बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है. What role does consistency and routine play in child development? So it's very important that right from the early age the child starts getting into some kind of routine and structured play. Unstructured play aajkal it's a big fad, ki let the child explore, and I'm not against it. We should let the child explore, we should let the child be. But then again, the balance, creating the right balance is very important. If you're not able to create that right balance, according to me, it is going to severely affect the child in future years. अगर हमने right time पे, अगर हमारे 3 years old को अगर पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ना नहीं आया, या उसको स्पून से अपने आप खाना खाना नहीं आया, उसको ये चीज़ आगे जाके इम्पैक्ट होगी, बिकॉज यू कैनॉट कीप फीडिंग द चाइल्ड एट द एज ऑफ 8 years or 7 years. So everything you are delaying. So give him that opportunity at the right age. उससे जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ेगी, उसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, और राइट एज पे उसको जब आएगा देन द चाइल्ड इज़ मोर कॉन्फिडेंट enough to handle him and get more self regulated. अगर वो सेल्फ रेगुलेशन आ जाएगा तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा. अगर वो सेल्फ बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट अदर चिल्ड्रन हु आर एबल टू डू इट, बट ही नोज दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, इवन इफ दो यू आर नॉट टेलिंग हिम. बट वो दूसरों को तो देख रहा है, उसके बाकी सेंसेस तो हैं जो देख पा रहे हैं कि वो कर रहा है. तो ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है, उसको ये सब चीज़ें जब समझ में आने लग जाती हैं, वो खुद से दे स्टार्ट cutting them off from the social environment. So I think it's very important that we take care of it and create that balance in him or her, so that they know कि हाँ हमारे को ये right time पे अपनी चीज़ें. So consistency पे हमें स्टार्टिंग से वर्क करना चाहिए. अगर हमें उसको 1 घंटा उसके साथ में स्पेंड करना है, वेदर इट इज़ थ्रू एक्टिविटीज़ और थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्ले or some kind of opportunity where the child is sitting with you and exploring, it can be half an hour also, it can, but that consistency in a routine is very important. नहीं, but जैसे हम इन प्ले तो वी कैन अंडरस्टैंड, वो तो हाफ एन आवर 1 hour तक भी जा सकता है. बट जैसे खाना खाना है तो शुड वी गिव देम अ टाइम फ्रेम कि हाफ एन आवर में यू शुड फिनिश योर फूड, दिस मच इज योर स्क्रीन टाइम फॉर द डे. Yeah, it's very ये important. सब चीज़ें प्रॉपरली उसको एक रूटीन में लाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो ये सब routine is चीज़ें, definitely बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, बिकॉज आप एक रूटीन जैसे बना दोगे अर्ली ईयर्स में, वो आगे भी उसका इम्पैक्ट रहता है, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग इनटू मोर रूटीन एंड अ डिसिप्लिन ग्रेजुअली ऑन हिज ओन, सो यू डोंट हैव टू रन अराउंड देम. तो जैसे अगर सुबह उठने का एक रूटीन होता है, सेल्फ हेल्प का स्किल डेवलप होना चाहिए कि हाँ यू हैव टू गो एंड डू इट, बट फॉर दैट यू ऑल्सो नीड टू डू इट. इट्स नॉट अगेन just making the child on the with the discipline kind of a thing कि हाँ मैं तुमको बोल रही हूँ इसलिए करना है, इसलिए नहीं, मैं बोल रही हूँ क्योंकि
it's a logic behind कि it. मैं भी कर मैं रही भी हूँ कर and रही you हूँ, have to follow yeah, me so like you have that. to follow me of what I'm doing because this is how it can impact you. So वो लॉजिकल रीजनिंग आजकल के बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है अगर आप उनसे कंसिस्टेंसी चाहते हैं. तो आप छोटा शुरू करिए बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड इन द होल डे इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. सो आप भी ओवरवेलम होंगे और बच्चा भी होगा. सो एंड यू मे नॉट सक्सीड थ्रू आउट द डे. जी. So start small. You can start with the morning routine first or the evening routine where you have time to be with the child. And उसमें क्या होगा कि आप जब वो छोटी छोटी जगहों पे सक्सीड हो जाएंगे तो फिर वो देन यू कैन कंटिन्यू विद द होल डे रूटीन बट स्टार्ट वेरी स्मॉल. मैम हमें बताइए, इज इट ओके टू गिव इन टू चाइल्ड्स डिमांड्स? So the demands can vary from child to child and from situation to situation. राइट. So you have to look into what kind of demands you can actually give in and where you cannot. So certain things can be negotiable जी. and certain things should not be negotiable. ओके. तो वो बच्चे को समझाना और बात करके उनको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ जो बोलते हैं मांगते हैं वो नहीं मिल सकती है. जी. पर कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं सो यू कैन ऑलवेज एक्चुअली वर्क ऑन इट कि हाँ ठीक है. हम लोग एक उसको ग्रैंड मा रूल बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं हाँ आपको ये करेंगे तो हम ठीक है थोड़ा मैं करती हूँ थोड़ा आप करिए. तो जब हम है कि वहाँ पे हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं बच्चे के जी. साथ में. अच्छा. तो जब हम कोलैबोरेट करके करते हैं तो वो बच्चा समझता है कि हाँ हर टाइम माई पेरेंट इज़ नॉट गेटिंग स्टबर्न हाँ. because then if you are being very stubborn with them and if you are becoming a very strict parent and authoritative parent तो वो भी वही सीख लेते हैं कि ठीक है अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा या जी. नहीं करूँगी. तो इसीलिए कोलैबोरेशन में जब हम करते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं कर सकती हूँ बट प्रोवाइडेड आई एम एबल टू गिव यू बट you have to also do some kind of a routine which you are wanting them to do it. So they feel happy to get it as a reward. So reward और bribery बहुत different है, ये हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है. We are not bribing the child, we are rewarding the child. हम अगर हम ऑफिस जाते हैं अगर हमें सैलरी मिलता है वहाँ पे कुछ सैलरी मिलती है तो वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है जिसके लिए हम जाते हैं. उसको हम ब्राइबरी नहीं बोल सकते. ब्राइबरी जो होती है वो पहले मिलती है और फिर उसके बाद में बच्चा काम करता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दे रही हूँ ये काम कर लो. हाँ. तो वो ब्राइबरी हो गई. लेकिन अगर मैं तुम ये काम कंप्लीट कर लो और उसके बाद में हमको मिलेगा क्योंकि ये तुमने बहुत अच्छा किया तो वो रिवॉर्ड हो जाता है. जी. अंडरस्टूड. So it's very important that we give our children rewards, but to the kind of effort the child has made in. अगर effort थोड़ा है तो थोड़ा रिवॉर्ड मिलेगा. अगर एफर्ट ज़्यादा है तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा. ऐसा ही होता है ना ऑफिसेज में भी. ये पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए where to draw a line. Yes. कि या ज़्यादा ब्राइब नहीं करना चाहिए, रिवॉर्ड्स ज़्यादा देने चाहिए. ये बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में. I like to tell every parent that parenting is a journey and it is not going to stop at any age. Once a parent, you are always going to be a parent. Right. So it is only कि वो change time to time होता रहेगा. कभी जब बच्चा छोटा है तो उसके डिमांड्स अलग होंगे. जैसे ही वो टीनेजर होगा तो अलग हो जाएंगे. एडोलेसेंस में अलग है. सो एवरी अडल्टहुड में अलग हो जाएंगे. बट इट इज़ गोइंग टू बी देयर. सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट वे ऑफ डेवलपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड. इसीलिए आजकल जो रिलेशनशिप्स इश्यूज जो आते हैं पेरेंट्स में या बच्चों में या why is it coming? Because either suddenly a child realizes that my parent was a very authoritative parent and he made me do what I never wanted to do, and you're leaving those scars on the child's development, on his emotional health. तो हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं जो हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं, हम many times we want our children to fulfill. Right. Yes. So he is an individual. Nurture him, but also be kind to him. कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से करिए. हमने वो 3 Idiots मूवी देखी है, ठीक है, उसमें भी यही बताया गया है कि बच्चा
जो है उसकी कैपेबिलिटी के से ज़्यादा हम पुश करते हैं. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ हमें गाइड करना चाहिए. वी हैव टू बी अ मेंटर फॉर आवर चाइल्ड कि वो हमारे पास कभी भी आके बात करे, जो भी उसके मन में क्या चल रहा है उसको आके करे. एंड वी गिव देम दैट नॉन जजमेंटल स्पेस टू कम एंड टॉक टू अस, सो दैट यू नो ही इज़ ओपनली कमिंग एंड टेलिंग यू कि हाँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ. बट अगर आप नहीं देंगे तो वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर आई रिलेशनशिप. थिंक प्रॉब्लम ये पेरेंट्स के साथ भी है कि हर कोई रेस में लगा हुआ है. हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा फर्स्ट आना First आ जाए. चाहिए या ग्रेड्स में आना चाहिए. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स को? सो यस, बहुत बार कि हाँ हम देखते हैं आजकल हर यू नो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के ऊपर आपने सुना होगा. और यू नो यू आर ऑलवेज होवरिंग अराउंड योर चाइल्ड. यू वांट कि उसका पूरा आप चेक कर रहे हैं, एक एक मिनट का उसका वो हो रहा है. हाँ, करेक्ट. तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को आप स्पेस ही नहीं दे रहे हैं ग्रो करने के लिए. एक पौधा आपने लगाया है, उसको आप सारा टाइम उसके अंदर खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं. सो एंड यू आर नॉट गिविंग दैट इनफ स्पेस. So what will happen? The plant is going to die. So give them that space. Let them make mistakes. Let them make their failures, and let them learn from those mistakes and failures. वो तभी कर पाएंगे जब आप उसे गिरने का मौका देंगे. हम हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे कि हाँ गिरने से पहले हम उसे उठा लेंगे. तो वो बच्चा क्या सीखेगा? और फिर वो जब गिरेगा, because life is going to throw challenges to you. Right. Yeah, they are going to throw that. They are, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको चैलेंजेस नहीं आते हैं. जब वो चैलेंज आता है वो डील नहीं कर पाता. इसीलिए ये सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फेलियर. एंड व्हेन दे फेल, व्हेन दे आर नॉट, और इन देयर रिलेशनशिप्स, that's a time they do not know how to deal with it. Right. So we have to give them that space. We have to create that right kind of environment for our child. Right. Ma'am, हमें बताइए, how can parents help navigate children's different emotions like anger, sadness, anxiety? So first and foremost, I always would like to advise any parent कि बच्चा अगर कुछ टैंट्रम आ रहा है, जब आप देख रहे हो, तो देर आर अंडरनेथ इमोशंस विच ही इज़ और शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस. ठीक है. बिहेवियर, आपको जो टैंट्रम दिख रहा है वो कम्युनिकेशन है, वो बच्चा जो आपके साथ करना चाह रहा है. लेकिन हम कहाँ बिज़ी हो जाते हैं, हम उसके टैंट्रम को डील करने में बिज़ी हो जाते हैं. जब हम उसके टैंट्रम को डील करेंगे, हमारा अटेंशन उस पे है, तो हम उसके साथ में उसको कभी हम गुस्सा करके या कुछ ऐसे करके उसको कि अरे यू वाई डिड यू स्पीक, यू नो यू वर बैक चैटिंग विद मी, और वाई डिड यू स्पीक दिस टू मी. सो वी आर मोर in trying to again get the control of the child that Correct. time. Whereas we are not understanding, oh, the child randomly will not come and shout at you. He or she is going through something, you know, for which he is showing this particular emotion. There is anger beneath this. So identify that underneath emotion of anger is an outcome and outburst, but underneath emotion is something else. He may have been reprimanded at school, or he may have been bullied at school, or his friend is not talking to him. Can be multiple things. हमको लगता है हमारे ही प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा होते हैं. अच्छा. पर हम कई बार वो चीज़ नहीं, हमको लगता है इनको खाने को मिल रहा है, सब कुछ करने को मिल रहा है, घर मिल रहा है, हमारे और क्या चाहिए. But they need that love, they need that affection, not only from you, from their peers, from their surroundings, which we fail to see and we fail to understand. Right. So then you see the tantrums coming, then you see, you know, even we also, if today my husband has not given me enough attention at home and he's coming late every day, so what is that I'm going to showcase? I'm going to be, you know, showing that outburst of anger. Right, right. तो वो जब आउटबर्स्ट एंगर का है, बिकॉज मेरे को इनफ अटेंशन नहीं मिला है, जी. इनफ लव नहीं मिला है, जी. तो इसलिए वो मेरा आउटबर्स्ट हुआ है. ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं, जब उनको इनफ अटेंशन नहीं मिल रहा है और उतना जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इस वे में कई बार आता है.
तो बैलेंस करना, ओवर अटेंशन और लेस अटेंशन इज़ बैड. ओके, बैलेंसिंग एक्ट हमेशा करना बहुत जो बहुत मुश्किल होता है मुश्किल लोगों होता के है. लिए, बट तो आई थिंक इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट है. हाँ. इसलिए आई ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड बीइंग अ कॉन्शियस पेरेंट. आधा से ज़्यादा टाइम तो हम लोग सबकॉन्शियसली डील करते हैं, अनकॉन्शियसली डील करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए भी और ख़ुद के लिए भी. और हम लोग को लगता है अरे आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे. वो हमारा ही एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो हम उनको दिखा रहे हैं हमारा इमोशनल साइड वो ही पोर्ट्रे कर रहे हैं. अच्छा. सो बिकॉज हमारी कंडीशनिंग जो हमारी हुई है, हम उसके हिसाब से आज की जनरेशन को डील करना चाहते हैं. सो इसलिए आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द पेरेंट, बिकॉज you know, as a parent, even I'm a parent of 2 boys, so everyone will have a different kind of problem or their way of you know dealing with the world is very different. So मैं अगर मैं एक एक्स रूल एक बच्चे के साथ अगर चल रहा है तो वो ही एक्स में इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ. Because they are two individual, two different minds. I have to know that these two different minds cannot be in the same way. Like जैसे हमने mathematical एक equations के साथ में कर लिया वैसा नहीं होगा. तो मेरे को अपने बच्चे को समझना is the most important thing, and being more conscious of his emotions, being more conscious and mindful of what he likes or he does not like. Right. तो वो mindful parenting पे हम काम करेंगे तो हम लोग इससे इजीली डील कर पाएंगे. ओके मैम, हमें बताइए कि कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पेरेंट्स को एक हेल्दी वे में कैसे डेवलप करना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए. ये फीलिंग को जो बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, पहले तो आप ये देखिए कि पेरेंट जो है वो उस बच्चे को नॉन जजमेंटल स्पेस दे पा रहे हैं कि नहीं. ओके. First and foremost, when a child comes to you with a problem, he or she would have done a mistake in this class and he didn't know how to deal with it. वो आपको आके बोल रहा है तो हम इमीडिएटली अरे आपने ऐसे क्यों किया, हम उसको सुनने की जगह हम उसको अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं या कट ऑफ कर देते हैं कि यू शुड नॉट हैव डन दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ दिस. सो इमीडिएटली व्हाट यू हैव डन, you have not let the emotion come out. You have just stopped it there. So next time he will be understanding and mindfully he'll speak to you. He'll not come and say, एक innocent way में जो वो आया था फर्स्ट टाइम आपको अपनी चीज़ें बताने, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको आपने वहाँ पे इमीडिएटली जज किया. तो जब हम वो एक जजमेंटल स्पेस से डील करते हैं तो वो बच्चा उस टाइम पे अपना जो सब कुछ हमें बताना चाहता था वो नहीं बताएगा. सो वहाँ पे वो इमोशनली आपके साथ में है, ही इज़ गोइंग टू बी देयर, बट देन ही मे बी कट ऑफ एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो उसमें थोड़ा सा हमको वहाँ पे अगेन वी हैव टू बी रियली माइंडफुल कि हम बच्चे को जजमेंटल स्पेस नहीं जो दे रहे हैं उसके ऊपर काम करें कि हम उसकी बात को पहले सुने समझें कि क्या है. फिर जब हमारे को ऐसा लगे कि हाँ हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सिखा सकते हैं या हम कभी कोई मूवी देख रहे हैं उसके साथ सिखा सकते हैं, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम शेयरिंग व्हाट ही वांट्स टू कम एंड कन्फाइड इन यू. अदरवाइज मोस्टली ये होगा कि ही विल गो एंड कन्फाइड इन हिज और हर फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स तो अपने हिसाब से अपने समझ के हिसाब से बच्चे को बताएंगे कि हाँ you can deal with this like this, and that's the reason he is getting that comfort outside home, and he will not be able to then discuss and not have that bonding and relationship with you. मैम ये बताइए कि हाउ कैन अ पेरेंट हेल्प चाइल्ड डेवलप गुड सोशल स्किल्स. So social skills again need to develop at the very young age. जैसे कि आपका लैंग्वेज डेवलप है प्रॉपर कि नहीं. अगर लैंग्वेज डेवलप है तो आपको वो बेसिक जो
एटिकेट्स हैं, मैनरिज्म है, आप कैसे अपने आप को, आपका जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, सो ये सारी चीज़ें आपको वो एनवायरनमेंट में फ़िट इन करने में हेल्प करता है. तो अगर आपको वो राइट नॉलेज, राइट वे ऑफ डीलिंग, you know, and communicating with people, so communication is very important how you are when you are going to into a social group. नहीं तो आप वहाँ पे थोड़ा सहम के बात करेंगे, बिल्कुल ओपनली बात नहीं करेंगे, you'll think before you speak there. So some children through observing they'll understand, some children need to be given, you know, some modeling kind of a behavior to understand. So every child will do it over a period of time सोशली जो कनेक्ट है. बट अगर जैसे हम जो बच्चों को एक आजकल स्कूल्स भी उसमें काफ़ी वर्क कर रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लाइक इन आवर स्कूल वी गिव देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेयर द चाइल्ड इज़ एबल टू you know showcase his or her talents without again being judged. And we are giving our children those reinforcements from time to time for whatever efforts they are making. तो उससे क्या होता है, वो सोशल स्किल बचपन से बच्चों में डेवलप हो जाते हैं. दैट कॉन्फिडेंस विच यू आर डेवलपिंग इन द चाइल्ड इज़ गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड in the future years. Right. So we were not given those opportunities when we were as in the schools or because academic was the main focus at Right. that particular time. So we definitely overcame our inhibitions and fears, but then it happened at a very later stage. But आजकल के बच्चों को वो opportunities मिलती भी हैं, और अगर आप को वो बच्चा कर रहा है, उसने जो भी एफर्ट किया उसको रिकग्नाइज करिए. हो सकता है कि एक एनुअल डे है या कभी कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपको बच्चे को, एक बच्चा हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ सेइंग अ फुल डायलॉग, और एक बच्चा सिर्फ एक लाइन ही बोल पाया है या एक वर्ड ही बोल पाया है, लेकिन उसके लिए भी अप्रिशिएट करेंगे तो यू हैव मोटिवेटेड द चाइल्ड टू डू फर्दर. Correct. Yeah. Rather than oh, why you didn't see why didn't you say the whole line, why didn't you say the whole phrase. तो उसमें ये हो सकता है कि वो बच्चा थोड़ा सा फियरफुल हो जाएगा जी. कि आई एम नॉट बीइंग मच अप्रिशिएटेड. हम को वो दूसरे को देख के लगता है हमारा बच्चा भी वैसा करना चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगा. वो हमारे को जानना अपने बच्चे को बहुत ज़रूरी है. जी. और दैट्स द फर्स्ट पॉइंट टू डेवलप देम सोशली. बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा ही टीवी और फ़ोन्स में आजकल बिज़ी हो जाते हैं. उसे किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं इन विदाउट बीइंग वेरी ओवर स्ट्रिक्ट Yeah. So screen time has to be limited definitely for our children and also for us, because आज की जो generation है, right from children to the elderly, they are all the time on the screen. जी. So because हम लोग ने अपने आप को सोशली कट ऑफ कर लिया है, और दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कैन बी विद आवर सेल्फ, एंड दैट्स द रीज़न एवरीवन वांट्स टू बी विद द स्क्रीन. जब हम लोग एक पॉजिटिव एंड रीइंफोर्सिंग एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट कर लेते हैं, चलो आज हम लोग एक गेम खेलेंगे एंड मेक इट लाइक मोर रादर देन कि ठीक है हम यहाँ पे आके सिर्फ मूवी देखेंगे, वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो विद आवर चिल्ड्रन. Right. एंड जब हम यंग एज से शुरू कर सकते हैं अगर, तो वाई नॉट. और अगर बड़े हैं, मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस टाइप का स्क्रीन कंजम्पशन हो रहा है, because they can get into especially with the teenagers where they get that kind of love and they get into different, that's the reason the cyber crimes and all these things are growing at such a rapid pace. तो वो schools should have these kind of awarenesses in the classroom. It should become a very important topic even in the schools, because बच्चों को हम एक प्रोफेशनल से जब वो बात समझाते हैं तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट करता है, rather than the parent only being taking care of it, because the environment is such you cannot go beyond a point. Plus you can also create some kind of moments with your child by taking them for a walk, कि
या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे वो स्क्रीन से सारा टाइम स्क्रीन के ऊपर नहीं है, और स्क्रीन कैन बी ऑल्सो एज अ रिवॉर्ड, and that too for a limited period of time जी at the end of the day or after earning these reward points. कुछ ऐसा हम create कर सकते हैं, because स्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आजकल जो एनवायरनमेंट है बच्चे को हम पूरी तरह से उससे विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, बट थोड़ा मॉनिटर करके थोड़ा उसको द चाइल्ड कैन गेट सम लाइव some examples where people have fallen into prey on for these malpractices which were there around them. तो कुछ अगर हम सिचुएशनल चीज़ों बच्चों को करेंगे स्कूल्स में, तो प्रॉब्लम can be controlled. You cannot completely take away the screen time. The scenario is such, राइट yeah, and because they are getting a lot of time, they have to make their projects, especially when they are teen. So thoda monitored karke have the control of these places where you can have control of these gadgets. या बट टोटली But तो आप totally नहीं कर सकते, right? especially with the teenagers. जी But थोड़ा monitor कर सकते हैं. Young age में develop as much you can develop their hobbies when they are especially with the preschoolers, or when they are into their primary years. वहाँ पे आप उनके साथ में hobby, उनके साथ में खेलना, because then they love to do it. करेक्ट They'll create a bond with you, and then they will also understand what you are saying. मैम टेल मी कि एक फैमिली डायनामिक्स में हाउ डज सिबलिंग राइवलरी और पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट अ चाइल्ड्स बिहेवियर? So sibling rivalry, is something which I've seen many a times unknowingly as a parent we can create also. अच्छा कि हम जब दो बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, फर्स्ट एक्नॉलेज दैट, एक्सेप्ट योर चाइल्ड, दोनों बच्चे आपके हैं और आपको उतने ही प्यारे हैं, लेकिन हम एक एप्पल को और मैंगो को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. जी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, अगर आप उसको फोकस करेंगे, उसके ऊपर उसको रीइंफोर्स करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, देन यू कैन ग्रो दोज rather than talking about all the weaknesses which a child is having. राइट So कंपैरिजन करने से बच्चों में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा आ जाता है. Many a times they may not say or they may not believe in it, but they start feeling, I'm not good enough. My parent is always talking good about the other बट आई child. थिंक फिर ये सिबलिंग राइवलरी के मेन रूट कॉज कभी कभी पेरेंट्स Parents ही ही हो हो जाते हैं. इसीलिए बिकॉज दे parent कीप कंपेयरिंग बोथ द चिल्ड्रन. यस यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोग उनको सिखा देते हैं कई बार कि नहीं आपको, और स्पेशली जब बड़ा बच्चा है कि आपको ही सब कुछ देखना है छोटे का. कई घरों में होता है ऐसा कि हम बड़े बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू लुक आफ्टर योर younger one. Younger one can also look after the elder one, many a times. So when you are creating that balance again here, कि दोनों को एक दूसरे के साथ में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है, जहाँ पे उसकी वीकनेस है वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ से उसको ऊपर लेके आओ, जहाँ इसकी है तो व्हेन दे आर एबल टू पुल देम आउट. सिबलिंग का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे के साथ हर टाइम रहना है, सो एक दूसरे का साथ देना है. तो वहाँ पे हमको साथ देना सिखाना है, ना कि उनको कॉन्फ्लिक्ट में डालना है. तो साथ देने के लिए तब हम कर सकते हैं जब उसकी वीकनेसेस में हम उसको बोलें कि दिस इज़ अ वीकनेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स अ वीकनेस, बट दिस इज़ योर स्ट्रेंथ. सो वेयर इफ़ यू वांट हेल्प यू कैन आस्क फॉर हेल्प, रादर देन कि मेरी ये वीकनेस है और मैं उसको छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ. उसके लिए मैं पहले एक्सेप्ट करूँगी तभी तो मैं उससे डील कर पाऊँगी. जी हम अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए बोलते हैं और कि हाँ ये नहीं है, तो हम वहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं बच्चों में. अच्छा तो हमारे को बहुत माइंडफुल, अगेन वी हैव टू बी हियर माइंडफुल कि आप बच्चों को आपस में जो सिखाएं कि हाँ यू हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर, यू हैव टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड, करेक्ट एंड एक दूसरे को जहाँ पे सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दीजिए,
जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप बाहर से लेने की जगह आप दीजिए, जी, सो दैट विल हेल्प द चाइल्ड मतलब एक दूसरे को सपोर्ट सपोर्ट करना करना बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ बच्चों पे के लिए। सिबलिंग राइवलरी कम हो सकती है जी, एंड उसमें थोड़ा इमोशनल बैलेंस भी हो जाता है, जी, क्योंकि देखिए हम लोग ये नेचुरल टेंडेंसीज के साथ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ वी आर बॉर्न विद इट, यू कैन राइट, नॉट completely take them away but you can just lessen them, करेक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ इट। अगर आपने उसको जो फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, उसको थोड़ा लेस कर सकते हो आप अपना गाइडेंस दे के एज अ पेरेंट। तो उसके लिए तो पेरेंट को गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। वो खुद ही नहीं डील कर पा रहे हैं तो वो बच्चों बच्चे को क्या कैसे सिखाएंगे। करेक्ट, सो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर ओन इमोशनल health and psychological health is more important if you want to teach your सो children. वही जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जब पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बच्चे के मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। सो वही है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो योर सेल्फ एंड Yes, योर वीकनेसेस correct. एंड Yeah, वर्क so ऑन इट, work on it. Yeah, strengths पे हम अपने हमें दूसरे की वीकनेस ही दिखती है, जी, स्ट्रेंथ तो कम दिखती है, वीकनेसेस ज़्यादा दिखती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड एंड व्हेन यू आर इनटू रिलेशनशिप्स। सो व्हेन थिंग्स आर इन अलायंस, जब तक कि हम कोर्टशिप पीरियड में है, वी आर इन अलायंस ऑफ ईच अदर, द मोमेंट we get married then we start looking at and we are staying together, we start looking at the weaknesses of each other, राइट, और उसमें फिर टर्बुलेंस शुरू हो जाता है मैरिजेस में और जी, रिलेशनशिप्स में। तो उसमें वही चीज़ हमारे बच्चों को इम्पैक्ट कर जाती है कि अगर हम इमोशनली खुद स्ट्रांग नहीं हैं तो बच्चा वही सीख रहा है, वही उसकी कंडीशनिंग हो रही है। जी, सो यू आर a role model for the child and whatever they are looking at you they are going to adapt knowingly or unknowingly. जी, तो वहाँ पे वो भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे, इसलिए हमें एज अ मदर है या आपको खुद को पेरेंट खुद का इमोशनल रेगुलेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ यू जी, वांट द सेम थिंग फ्रॉम योर चाइल्ड। करेक्ट, सो स्पेंड सम टाइम विद योर ओन सेल्फ, एटलीस्ट 1 hour a day, take out some time where you feel happy, you know, करेक्ट, rather than just being कि हर time you're hovering around your child and being with them. So when you're taking care of yourself you will be happy and you can give the same energy to the child also. correct, right. So ma'am, according to you, does a mother play a bigger role in child's emotional development than the father? Yes, to a certain extent mothers, Okay. yeah, because mother is most of the time with the child, Hmm. you know, emotionally and also physically. She is, because as I told you in the beginnings, the child becomes a center once of your life when they are there. So you are more emotionally bonded with your child as a mother. Not that father is not, but then as a mother, you know, we are monitoring and we are being with them. We are looking at उनकी छोटी छोटी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो वो तो बहुत होना शुरू हो जाता है। तो मदर का इम्पैक्ट तो बहुत रहता है बच्चे की पर्सनालिटी पे। जी, इसीलिए मदर के लिए आई ऑलवेज फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हर ओन इमोशनल हेल्थ एंड जब वो कर पाएंगी, अपने आप को देख के अपने आप से डील कर पाएंगी, तो शी इज़ शोइंग हर स्ट्रेंथ टू द चाइल्ड। यस, okay, तो अगर मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करूँगी तो ही वो बच्चा मेरे को देख के सीखेगा कि यस माई मदर इज़ एबल टू डील विद इट because she is strong enough to deal with it and I have to learn. We have also learned from our mothers, yes, जो हम लोग ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं और कुछ जगह पे नहीं वो जो सीख पाए, जो नहीं वो कर पाती थी, हमने वो भी सीख ली हैं। जी, So no one teaches you anything, you're just looking at it and you're learning from the Correct. environment. जी, So इसीलिए मदर की इमोशनल हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है and I always want all the mothers to, you know, take care of them, their emotional health, because she also goes through a lot right. while balancing her home. Also nowadays we are working, Hmm. so home life work balance create करना is not a easy thing. Right. तो वहाँ पे मदर की इमोशनल हेल्थ तो हो ही जाती है ख़राब कई बार, बट उसको डील करना अगर उनको आ जाएगा
तो बच्चों को Yeah. भी आ जाएगा. Right. Tough one actually, Tough but one, ठीक yeah. है. Yeah, it's a good thing if you can See, it's learn that. yeah, so it's not a overnight thing what जी. you can achieve. It's a step by step work in progression रहना चाहिए. छोटा जी. छोटा steps लेंगे, baby steps, तो पहुंच जाएंगे गोल तक. Right. So मैम, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं चिल्ड्रन और पेरेंट्स को in general to help them have a happy and healthy life in future? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, बी विद ईच अदर. एंड उसके लिए relationships many a times, because I've seen also that marriages, if there are broken marriages and failed marriages, it's really showing, or bitter relationships. Children are not willing to get married nowadays. You will see a lot of adolescents, and they do not want to go into this serious relationships because they have seen कि इससे कोई अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जी. stress हो रहा है, and they are running away from that stress, and they are not able to take those responsibilities which can give them stress. So you should be there for each other as a family. अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इस चीज़ को enjoy करें, it's definitely not an easy thing. Any relationship maintaining is not going to be easy, but yes, when you are there with each other, be with each other, be honest to each other, sincere to each other in your relationships, and be in alliance. सबसे बड़ा वो हम लोग जो भूल जाते हैं, वो अलायंस देना भूल जाते हैं. हम एक दूसरे की गलतियाँ जो है वो देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को देखना भूल जाते हैं. व्हेन वी ऑल्सो एक्नॉलेज देयर स्ट्रेंथ्स, ओके यू हैव दिस वीकनेस, बट आई एक्नॉलेज दैट you have this strength also. Right. So every person is born with some strengths and weaknesses. So when you are able to showcase that in front of your children, they'll also understand. Then they'll also start doing the same thing, and that will bring them closer. Do forgiveness, right? Be grateful for whatever small little things you're getting in a relationship. Right. So this starts at an early age. अगेन कि अगर आप बच्चों को छोटे होते से ग्रैटिट्यूड देना, फॉरगिवनेस करना सिखाएंगे, तो यू आर रेजिंग मोर सोशली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स. भी हम बात करते हैं कि हमें वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी गुड ह्यूमन बींग्स, बट गुड ह्यूमन बींग्स की डेफिनेशन क्या है? इट स्टार्ट्स विद गुड रिलेशनशिप्स. Right. Yeah, so we need to have good relationships to have good human beings. Right. Well said. Yeah. Thank you so much, ma'am, for gracing my podcast. आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें बताई रिलेशनशिप्स के बारे में और बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में, उनकी इमोशनल हेल्थ के बारे में. Thank you so much. Thank you so much for having me here and giving me this opportunity to be with you at your show. And I'm really honored. Thanks. थैंक यू. सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मिसेस अरुणा अग्रवाल के साथ, जिन्होंने हमें बच्चों की इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया. पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में हमें समझाया. रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना ज़रूरी है वो भी बताया. हमें बताइए कि आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा. Do comment to us and do not forget to like, share and subscribe to Pot Talk with Ekta.